The engineering services 2020, the thermodynamics was, a moderate level was asked. Some of the questions were really very easy, and some of the questions were slightly tricky if somebody has not solved them before, so there may be a problem. But overall, it is moderate or on the slightly easier side, we can say. So one by one, we'll discuss the questions which were asked. So I have written here the problem 1B, which appeared in the question as 1B, first part. So Carnot efficiency and second law efficiency of a heat engine दिया हुआ है हमको 70% and 90% respectively. Determine the first law efficiency. ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था. अगर आपको सेकंड लॉ एफिशिएंसी के बारे में पता है तो आप कह सकते हो कि सेकंड लॉ एफिशिएंसी बेसिकली क्या होता है, कंपैरिजन होता है. whatever is the actual efficiency and whatever is the best possible efficiency. So second law efficiency is the ratio of first law, that is the normal efficiency which we calculate, actual efficiency, and it is compared with the Carnot or the best possible efficiency in such cases. So second law efficiency और Carnot efficiency हमें given है. So Carnot efficiency and second law efficiency of heat engine are 70% and 90% respectively. So second law efficiency 90% है, that is this is 0.9 is equals to first law efficiency हमें calculate करनी है, and 70% is the Carnot efficiency. So Carnot efficiency 70% है, that is 0.7. अच्छा, कार्नॉट एफिशिएंसी कुछ लोग इसमें मिस्टेक करते हैं. कार्नॉट एफिशिएंसी, सम पीपल थिंक दैट इट इज 100%. नो, कार्नॉट इज द बेस्ट पॉसिबल इन अ सर्टेन सिचुएशन. किसी सिचुएशन में जो बेस्ट हो सकता है दैट इज द कार्नॉट. इट डज नॉट मीन इट इज 100%. इट कैन बी 70%, इट कैन बी 20% ऑल्सो, क्योंकि जो हीट हम सप्लाई कर रहे हैं उसमें से हाउ मच वर्क कैन बी डेवलप्ड, इट डिपेंड्स ऑन एट व्हाट टेम्परेचर द हीट हैज बीन सप्लाइड और सिंक का टेम्परेचर क्या होता है. सो फर्स्ट लॉ एफिशिएंसी कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम हियर. दिस इज 0.9 into 0.7. So we can calculate this 0.9 into 0.7. This is 0.63. So ये 0.63 आ रहा है फर्स्ट लॉ एफिशिएंसी. तो इजी है, वी कैन सॉल्व. 4 मार्क्स क्वेश्चन था ये. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. So next question, first B part. Let me read the question. Heat engine operates between two reservoir. दो रिजर्वायर के बीच में ऑपरेट कर रहा है. 800 डिग्री सेल्सियस एक रिजर्वायर है and 20 डिग्री सेल्सियस is the another reservoir. One half of the work output of the engine is used to drive a Carnot heat pump. So if somebody has solved questions on this topic, second law topic पे, जिसमें कि फॉर्मूले इन्वॉल्व होते हैं, टेम्परेचर बेस्ड फॉर्मूला, सो यू वुड हैव सॉल्व दीज टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन विच एन इंजन इज डेवलपिंग सम वर्क एंड दैट वर्क either completely or some part of it is used to run a refrigerator or heat pump. So is used to drive a Carnot heat pump that removes heat from the cold surrounding का temperature 2 degree Celsius है, and transfers it to a house maintained at 22 degree Celsius. If the house is losing heat at a rate of 62,000 kilojoule per hour, determine the minimum rate of heat supply to the heat engine required to keep the house at 22 degree Celsius. So मैंने एक डायग्राम यहाँ ड्रॉ किया है, आप देखो. इंजन हीट रिसीव कर रहा है 800 डिग्री सेल्सियस से, सो प्लस 273 अगर हम ऐड करें 800 डिग्री सेल्सियस में तो 1073 होगा, एंड दिस विल बी 293. सो दैट इज व्हाट आई हैव शोन, 293. ये W वर्क प्रोड्यूस करेगा. लेट अस से आउट ऑफ दिस वर्क W by 2, दैट इज हाफ. आधा जो वर्क है वो हीट पंप के लिए यूज हो रहा है, एंड W by 2 विल बी दी आउटपुट. आउटसाइड आउटपुट जाएगा. दिस W by 2 जो वर्क प्रोड्यूस हो रहा है, विद द यूज ऑफ दिस सपोज Q3 हीट एब्सॉर्ब होती है फ्रॉम 275, दैट इज 2 डिग्री सेल्सियस. जो इस क्वेश्चन में बोला है the surrounding, cold surrounding 2 degree Celsius पे, and house has to be maintained at 22 degree Celsius. So house ये है 22 degree Celsius पे,
मेंटेन करना है, केल्विन में कन्वर्ट कर लिया 295। अब इसमें ये कह रहे हैं कि द हाउस इज लूजिंग हीट एट ए रेट ऑफ 62,000 किलोजूल पर आवर। सो अगर हाउस हीट लूज कर रहा है 62,000 kilojule per hour, if this is the heat loss, Q loss, heat loss by the house, so if the house has to be maintained at this temperature, अगर हाउस को इस टेम्परेचर पे हमें मेंटेन रखना है तो we must supply heat to the house at the same rate, इसी रेट पे हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। so the Q4 that is the heat supplied to the house, ये हमें पता चल गई वैल्यू, ये हो जाएगी 62,000 किलोजूल पर आवर। फाइन। अब हमसे ये पूछा है कि मिनिमम इनपुट इंजन के लिए क्या होगा, क्यू मिनिमम क्या होगा। सो आप देखो, इफ द इंजन इज डेवलपिंग अ सर्टेन वर्क, एक सर्टेन वर्क इंजन डेवलप कर रहा है, हाफ ऑफ इट विच इज यूज्ड टू रन अ हीट पंप। सो मिनिमम इनपुट तभी आ सकता है व्हेन द डिवाइसेस आर रिवर्सिबल। मिनिमम इनपुट पे काम करते हैं रिवर्सिबल डिवाइसेस बिकॉज दे हैव बेस्ट परफॉर्मेंस इफ दे आर वर्किंग रिवर्सिबली। सो इंजन और हीट पंप दोनों को वी विल टेक एज रिवर्सिबल डिवाइसेस। सो अगर इसको हम रिवर्सिबल डिवाइस लेते हैं, सो एफिशिएंसी ऑफ द इंजन, इसकी जो एफिशिएंसी है इंजन की, तो इसमें हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, एज्यूमिंग इंजन and heat pump to be reversible for minimum input। क्यों assume किया? for minimum input। ठीक है। so efficiency of the engine क्या हो जाएगा, we can write it as 1 minus TL upon TH, ऐसे लिख सकते हैं efficiency 1 minus TL upon TH। so 1 minus TL लोअर टेम्परेचर है इंजन के लिए 293, सो 1 माइनस 293 अपॉन हायर टेम्परेचर आप देखोगे 1073, तो आ जाएगा 1073, ये है इंजन के लिए। बट एफिशिएंसी ऑफ द इंजन इफ इट इज रिवर्सिबल इट कैन बी रिटन लाइक दिस, ऐसे लिख सकते हैं। बट एफिशिएंसी ऑफ द इंजन ऐसे भी तो लिख सकते हैं, वर्क डेवलप्ड अपॉन हीट सप्लाई। सो वी कैन राइट वर्क डेवलप्ड W अपॉन heat supply Q1। this is what we have to find out, ये हमें फाइंड आउट करना है। सो यहां से हम क्या कर रहे हैं, W की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ Q1 निकाल लेते हैं। सो लेट मी कैलकुलेट दिस वैल्यू ऑफ W। सो दिस इज 1 एफिशिएंसी जो आ जाएगा 1 माइनस दिस इज 293 डिवाइडेड बाई 1073, सो दिस इज 0.7269, ये आ जाएगा 0.7269 और Q1 को आई विल टेक ऑन द राइट साइड ले जाऊंगा तो इनटू Q1, ये हो जाएगा। ठीक है। सो W इन टर्म्स ऑफ Q1 पता लग गया हमको। नाउ द वर्क गिवन टू द हीट पंप इज W/2, हीट पंप जो हम वर्क दे रहे हैं वो W/2 है। सो Q1 की टर्म्स में हीट पंप का वर्क भी वी कैन राइट। फॉर हीट पंप नेक्स्ट हम हीट पंप की बात करेंगे। फॉर हीट पंप सिंस रिवर्सिबल, क्योंकि हम रिवर्सिबल मान रहे हैं, हम ये लिख सकते हैं COP फॉर द हीट पंप इज इक्वल्स टू TH अपॉन TH माइनस TL, ये लिख सकते हैं हम। टेम्परेचर की टर्म्स में इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। सो हीट पंप के लिए TH हायर टेम्परेचर अगर आप देखोगे, सो 295 इज द हायर टेम्परेचर, TH अपॉन TL इज 275, so 295, this is 295 upon TH, that is 295 minus TL 275 ही आएगा। ठीक है। तो COP ऑफ द हीट पंप, बट COP हीट पंप रिवर्सिबल हो या ना हो, वी कैन राइट डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन एनर्जी इनपुट लिख सकते हैं। सो डिजायर्ड इफेक्ट COP कैन ऑल्सो बी रिटन एज desired effect upon energy input, we can write like this also। so desired effect, what this heat pump is giving us, क्या desired effect दे रहा है, it is supplying this much energy 62,000 kilojoule per hour। so basically question में kilojoule per hour दिया है, therefore I will write in this unit itself
सो ये भी अपने आप किलो जूल पर आवर में आ जाएगा. सो 62,000 किलो जूल पर आवर. दिस इज 62,000 किलो जूल पर आवर ये आएगा. और एनर्जी इनपुट कितना हम दे रहे हैं? W/2. एनर्जी इनपुट हम कितना दे रहे हैं? W/2. फाइन. सो दिस कैन बी कैलकुलेटेड. इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं. 62,000 अपॉन W/2. ये W/2 Q1 की टर्म्स में आ जाएगा. सो W/2 को हम कैलकुलेट कर सकते हैं 0.7269 डिवाइडेड बाई 2, 0.3634, 0.36345 Q1 ये आ जाएगा. W/2 in terms of Q1, right, is equals to the COP. So 295 divided by this term, so 14.75 आएगा. 14.75. Therefore we can find out Q1. So हम Q1 निकाल सकते हैं यहाँ से. Q1 कैलकुलेट करेंगे तो Q1 आएगा 62,000 divided by 0.36345 and we'll take Q1 on this side. So divided by 14.75. This is 11565. 11565.24 और यूनिट विल बी किलो जूल पर आवर. ये यूनिट होगी किलो जूल पर आवर. सो दिस इज द यूनिट. फाइन. सो दिस ऑल्सो इफ somebody has solved questions like this तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट प्रॉब्लम. सो नेक्स्ट प्रॉब्लम का डायग्राम मैंने ऑलरेडी बना रखा है. इस क्वेश्चन को देखें तो ये क्वेश्चन सेकंड बी पार्ट है. जो थर्मो का क्वेश्चन है पेपर में सेकंड बी की तरह आया था. सो क्वेश्चन देखते हैं. इफ फ्रिक्शनलेस पिस्टन सिलेंडर डिवाइस इनिशियली कंटेन्स 0.01 मीटर क्यूब ऑफ आर्गन गैस. तो आर्गन गैस है, ये वॉल्यूम दिया हुआ है, टेम्परेचर है 400 केल्विन, प्रेशर है 350 किलो पास्कल. हीट इज नाउ ट्रांसफर्ड टू आर्गन फ्रॉम अ फर्नेस एट 1200 केल्विन. फर्नेस का टेम्परेचर 1200 केल्विन है एंड द आर्गन एक्सपेंड्स आइसोथर्मली अंटिल इट्स वॉल्यूम इज डबल्ड. तो फर्नेस से हम हीट सप्लाई कर रहे हैं और आइसोथर्मल प्रोसेस है. जैसे ये सिचुएशन रिप्रेजेंट की है मैंने. फर्नेस 1200 केल्विन पे है. फ्रॉम हियर वी आर सप्लाइंग हीट टू द आर्गन कंटेन्ड इन अ पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट. आर्गन के लिए इनिशियल वॉल्यूम है 0.01 मीटर क्यूब. दिस इज इनिशियल वॉल्यूम फॉर द आर्गन. V1 इज इक्वल्स टू 0.01 मीटर क्यूब. ये इनिशियल वॉल्यूम है एंड द वॉल्यूम डबल्स. वॉल्यूम डबल हो जाता है तो V2 विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ V1. प्रोसेस आइसोथर्मल है सो T1 विल बी इक्वल टू T2. आर्गन के लिए आइसोथर्मल प्रोसेस है. नाउ हियर yes, argon expands isothermally until its volume is doubled. ये हमने देखा. The heat transfer takes place in such a way that there is no heat loss from argon to atmosphere. तो atmosphere के साथ कोई heat transfer नहीं हो रहा है. ये मैंने यहाँ represent कर दिया है. Heat transfer with the atmosphere is 0. Then the atmosphere is at 300 Kelvin. तो T0 को 300 Kelvin टेम्परेचर दिया है. Determine वर्क डन बाय द आर्गन निकालना है, हीट ट्रांसफर टू आर्गन निकालना है एंड एंट्रोपी जनरेशन एंड इरिवर्सिबिलिटी ड्यूरिंग द प्रोसेस निकालनी है. आर फॉर द आर्गन हमें दिया हुआ है. ठीक है. सो दीज थिंग्स आर गिवन इन द प्रॉब्लम. अब आप देखो इस क्वेश्चन में जो गिवन डेटा है, टेम्परेचर आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा. वॉल्यूम इनिशियल गिवन है हमको. फाइनल वॉल्यूम विल बी ट्वाइस ऑफ इनिशियल वॉल्यूम एंड इनिशियली वी कैन राइट दी प्रेशर ऑल्सो एंड टेम्परेचर ऑल्सो. हमें दिया गया है P1 और T1 भी हमें गिवन है तो ये हम यहां से लिख सकते हैं. दी प्रेशर इज 350 किलो पास्कल, टेम्परेचर इज 400 केल्विन. सो 350 किलो पास्कल, 350 किलो पास्कल एंड दिस इज 400 केल्विन. सराउंडिंग के लिए बोला है इट शुड बी टेकन एज 300 केल्विन. ये सराउंडिंग की कंडीशन है. ठीक है. आइसोथर्मल प्रोसेस अगर है सो वर्क वी कैन इजीली कैलकुलेट. ए गिवन मास ऑफ आर्गन अंडरगोज एन आइसोथर्मल प्रोसेस. क्लोज सिस्टम का केस है. सो आइसोथर्मल प्रोसेस है,
वर्क निकालना है। सो वर्क विल बी इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है वर्क का आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, P1V1 log of V2 upon V1, यही फॉर्मूला होता है। सो दिस विल बी P1V1 ln V2 upon V1। कांस्टेंट C होता है विच कैन बी रिटन एज P1V1 mRT और P2V2 लिख सकते हैं। log of V2 upon V1 है, प्रेशर की टर्म्स में होगा तो P1 upon P2 होता है। सो वी कैन कैलकुलेट इट, P1 is 350 kilopascal into V1 is 0.01, V2 twice of V1 है, so V2 is basically twice of V1। so जब हम यहां रखेंगे वैल्यू, so ये log of 2 आ जाएगा, because this is why, because V2 is twice of V1, ये है, इसलिए जब डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा। so इसको कैलकुलेट करते हैं, this is 350 into 0.01 log of 2, फाइन। तो ये वैल्यू आ जाएगी, वर्क इज इक्वल्स टू 2.426। प्रेशर किलो पास्कल में है, वॉल्यूम इज इन मीटर क्यूब, सो द यूनिट विल बी किलोजूल, यूनिट किलोजूल में आएगी, ठीक है। सो दिस इज द यूनिट फॉर दिस, इसके लिए यूनिट आ गई किलोजूल। अब हमें क्या निकालना है फर्दर, सो वर्क डन बाय द आर्गन, राइट, आर्गन ने वर्क किया, आर्गन हैज डन वर्क ऑन द पिस्टन एंड फर्दर दैट एनर्जी गोज आउट इन द फॉर्म ऑफ वर्क। हीट ट्रांसफर टू द आर्गन। अब हीट ट्रांसफर अगर आपको निकालना है तो हीट ट्रांसफर के लिए समझो, इफ वी यूज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का अगर हम यूज करें फॉर अ क्लोज्ड सिस्टम, सो फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics, first law of thermodynamics for a closed system, एक closed system के लिए क्या कहता है, heat transfer equals to change in internal energy plus work। this is one of the form, ये first law of thermodynamics का एक फॉर्म है ना। आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, इंटरनल एनर्जी चेंज विल बी इक्वल टू 0 बिकॉज आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल। Why I can say that internal energy change is 0 for the isothermal process? Because I am assuming the gas to be an ideal gas. जो भी substance normally exist करते हैं in the gaseous phase, normal conditions में, O2, N2, CO2, argon, helium, oxygen, air, they should always be assumed as ideal gas. If nothing is mentioned, आपको जरूरत पड़ती है, you can always assume. Exam में question solve करते समय what you can always do is you can write assumptions when you are writing the solution। आप assumption लिख सकते हो starting में, assumptions, और you can simply leave some space, beginning में थोड़ा सा space छोड़ सकते हो। so whatever assumptions you are taking, जो भी assumption की आपको जरूरत पड़ती है, you can go back and write, उसको आप लिख सकते हो। so क्या assume किया है हमने, assuming argon to be an ideal gas, argon को हमने ideal gas माना है, ठीक। so if we are assuming the argon to be an ideal gas, heat transfer will be equal to work transfer, work transfer के बराबर हो जाएगा। so heat input जो है, heat input दे रहे हैं equal to work, this will be equal to 2.426 किलोजूल, ये आ जाएगी वैल्यू हीट ट्रांसफर की। फाइन, सो हीट ट्रांसफर हमें मिल गया, दिस इज 2.426 किलोजूल। नाउ नेक्स्ट देखते हैं व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, क्या निकालना है नेक्स्ट हमको। नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट इज एंट्रोपी जनरेशन एंड इरिवर्सिबिलिटी ड्यूरिंग द प्रोसेस। एंट्रोपी जनरेशन, हाउ टू फाइंड आउट द एंट्रोपी जनरेशन। सो फॉर फाइंडिंग आउट द एंट्रोपी जनरेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऑल द बॉडीज इन्वॉल्व, जितनी भी बॉडीज इन्वॉल्व है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, you can find out the entropy change of all the bodies and add कर दो आप। so जो भी एक्स्ट्रा एंट्रोपी मिलेगी आपको, सपोज जैसे एनर्जी एनालिसिस वी डू, सो इफ वी राइट चेंज इन एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स, अगर हम यूनिवर्स की एनर्जी का चेंज लिखते हैं तो एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी ना तो क्रिएट हो सकती है ना डिस्ट्रॉय हो सकती। सो डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ वन विल बी इक्वल टू इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ द अदर। अगर कहीं एक जगह एनर्जी कम हुई तो दूसरी जगह बढ़ जाएगी, तो अपने आप जीरो आता है।
दैट इज वाई वी से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसीलिए तो बोलते हैं एनर्जी तो कंजर्व रहती है बट क्वालिटी ऑफ एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, एनर्जी की क्वालिटी कंजर्व नहीं होती। सो व्हेन द एनर्जी लीव्स द फर्नेस, जब एनर्जी फर्नेस से जा रही है तो फर्नेस के मॉलिक्यूल्स का रैंडम मोशन चेंज करेगी। आप कहोगे सर टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, अरे भाई टेम्परेचर कांस्टेंट है बिकॉज इट हैज बीन मेंटेन्ड कांस्टेंट, वो मेंटेन किया जा रहा है कांस्टेंट, बैकग्राउंड पे कुछ चल रहा होगा। नहीं तो रिजर्वायर है, रिजर्वायर मींस लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बहुत मॉलिक्यूल्स है। सो इफ यू टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम इट, जैसे लेक है, अब लेक में से इफ यू टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट, सो ऐसा थोड़ी होता है कि लेक टेम्परेचर चेंज नहीं करता, चेंज करता है बिकॉज टेम्परेचर इज द एनर्जी ऑफ अ यूनिट मॉलिक्यूल, टेम्परेचर एक यूनिट मॉलिक्यूल की एनर्जी है। सो व्हेन यू विल टेक सम एनर्जी, सो ओवरऑल एनर्जी क्या आएगी फ्रॉम ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लेक, लेक के सारे मॉलिक्यूल से मिला के ही तो वो एनर्जी आएगी। सो ईच मॉलिक्यूल हैज टू गिव अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, इंडिविजुअल से बहुत कम कंट्रीब्यूशन आता है, तो एनर्जी ऑफ एन इंडिविजुअल मॉलिक्यूल रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट। जैसे पूरे इंडिया की पॉपुलेशन में से अगर आप बोलो कि भाई आई वांट 1000 रुपीज फ्रॉम द एंटायर इंडिया, टोटल 1000 चाहिए, सो ईच पर्सन हैज टू कंट्रीब्यूट। तो अगर 1130 प्लस करोड़ पीपल से आएगा तो ईच पर्सन विल हैव टू गिव 0.0 समथिंग अमाउंट, तो हर इंडिविजुअल की वेल्थ जो थी ऑलरेडी जो थी सेम रहेगी, ऑलमोस्ट सेम रहेगी, देयर विल नॉट बी एनी चेंज। सो एनीवेज दैट इज द थ्योरेटिकल पार्ट, ये थ्योरेटिकल पार्ट है डिस्कशन का। बट हियर व्हाट आई वांट टू से इज कि वी हैव कैलकुलेटेड दिस हीट ट्रांसफर, इफ आई वांट टू नो द एंट्रोपी जनरेशन, मुझे ये जानना है कि दुनिया में कितनी रैंडमनेस बढ़ गई है, how much randomness has been generated during this process. So let me find out the change in randomness of the reservoir, change in randomness of this. So अगर एनर्जी की randomness सेम होगी, so increase in randomness will be equal to decrease in randomness, जीरो आएगा, there is no creation, कोई creation नहीं होगा। अगर जीरो नहीं है तो that means when the energy moved from here to here, when the energy was here, it was causing let us say 1 unit of randomness, और सेम एनर्जी जब यहां पहुंची तो the way the energy is stored, जिस तरीके से एनर्जी स्टोर्ड है, the randomness caused here is different, अलग है। मान लो 2 है तो आप कहोगे here increment 2 हुआ या reduction 1 हुआ, so +2 -1 1, 1 is the extra randomness, this is the generation of randomness due to this process. So let us find out, इसको फाइंड आउट करते। सो फाइंड आउट करने के लिए फॉर फाइंडिंग आउट द एंट्रोपी जनरेशन, एंट्रोपी जनरेशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, एंट्रोपी चेंज ऑफ द फर्नेस प्लस एंट्रोपी चेंज ऑफ द आर्गन एंड, और क्या पार्टिसिपेट कर रहा है, नथिंग एल्स इज पार्टिसिपेटिंग। जो वर्क दिया है, द एनर्जी गोज आउट इन द फॉर्म ऑफ वर्क, वर्क विल नॉट चेंज रैंडमनेस एनीवेयर। वर्क जब आप देते हो इट इज अ हाई ग्रेड एनर्जी, वर्क एक हाई ग्रेड एनर्जी है, तो जब आप एनर्जी वर्क की फॉर्म में किसी को देते हो तो यू आर नॉट गिविंग रैंडमनेस टू समबडी, आप कोई रैंडम एनर्जी नहीं दे रहे। वर्क गेट्स कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वो अलग बात है। बट ड्यू टू आवर प्रोसेस, हमारी प्रोसेस में की वजह से व्हाट हैज हैपेंड, एंट्रोपी चेंज ऑफ द फर्नेस, फर्नेस क्या है, वी टेक इट एज अ रिजर्वायर, एक रिजर्वायर की तरह लेते हैं, एनर्जी हैज लेफ्ट, थर्मल एनर्जी एट अ सिंगल टेम्परेचर, सो रिडक्शन होगा एंट्रोपी में माइनस Q बाई T, Q इज द हीट ट्रांसफर, T इज द टेम्परेचर ऑफ द फर्नेस, प्लस एंट्रोपी चेंज ऑफ द आर्गन, आर्गन को आइडियल गैस मान रहे हैं हम, वी आर ट्रीटिंग आर्गन एज एन आइडियल गैस, तो आइडियल गैस की एंट्रोपी में चेंज लिखना है M इंटू, फॉर्मूला बेटर है CV वाला फॉर्मूला यूज करें बिकॉज वी नो फाइनल वॉल्यूम इज डबल ऑफ इनिशियल वॉल्यूम, सो M इंटू CV ln T2 by T1, ln T2 by T1 प्लस R ln V2 by V1, ये आएगा this, fine. So this is equals to minus heat transfer is 2.426 upon temperature is 1200, टेम्परेचर कितना है 1200 है, प्लस मास निकाल सकते हैं और m इंटू आर निकाल लेते हैं, क्यों, बिकॉज आप देखो इफ द प्रोसेस इज आइसोथर्मल, अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है
तो T1 और T2 तो सेम ही हो गए ना, दिस विल बी जीरो, जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो रहा है? बिकॉज T1 इज इक्वल्स टू T2 हो रहा है, दैट इज वाई दिस इज जीरो। ठीक है, देन वी विल हैव m इंटू आर, हमारे पास क्या होगा m इंटू आर ln V2 अपॉन V1। आइडियल गैस माना है, आइडियल गैस माना है, सिंस आइडियल गैस, क्योंकि हम आइडियल गैस मान रहे हैं, देयरफॉर PV इज इक्वल्स टू MRT, PV इज इक्वल्स टू MRT। सो m इंटू आर की जगह आप लिख सकते हो P1 V1 अपॉन T1। ठीक है, सो वी कैन राइट लाइक दिस, ये लिख सकते हैं एंट्रोपी जेनरेशन इज इक्वल्स टू माइनस, इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, माइनस 2.426 डिवाइडेड बाई 1200, so this is coming out to be negative of 0.00202 किलो जूल पर केल्विन में यूनिट आएगी, किलो जूल पर केल्विन, एनर्जी हीट ट्रांसफर इज इन किलो जूल। सो प्लस दिस विल बी प्लस m इंटू आर लिखना है, सो m इंटू आर वी कैन राइट, इसको हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट एस यहां से P1 V1 अपॉन T1। सो वैल्यूज रख देते हैं, P1 प्रेशर 350 किलो पास्कल, V1 0.01 अपॉन T1 इज 400 केल्विन, लॉग ऑफ V2 अपॉन V1, सो V2 ट्वाइस है V1 के, सो ln 2 क्यों? क्योंकि V2 इज ट्वाइस ऑफ V1, ये लिख सकते हैं। इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, सो लेट मी कैलकुलेट दिस, 350 इंटू 0.01 डिवाइडेड बाई 400 into ln 2, so this is minus 0.00202, this is plus 0.00606 आया, so इसमें से माइनस कर देता हूँ 0.00202, तो ये आ जाएगा एंट्रोपी जनरेशन इज इक्वल्स टू 0.00404 किलो जूल पर केल्विन, दिस विल बी द एंट्रोपी जनरेशन। इसको जूल्स में कन्वर्ट कर लें, बिकॉज द वैल्यू इज वेरी स्मॉल, सो एंट्रोपी जनरेशन को जूल्स में लिख लेते हैं। एंट्रोपी जनरेशन विल बी इक्वल टू, सो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 4.04 जूल पर केल्विन, ये आ जाएगा एंट्रोपी जनरेशन। इररिवर्सिबिलिटी, इफ वी हैव टू राइट इररिवर्सिबिलिटी लिखनी, सो इररिवर्सिबिलिटी सिंपली इफ वी रिमेंबर द Guy-Stodola theorem. Guy-Stodola theorem, what does it say? Irreversibility directly proportional है entropy generation के, and we can write irreversibility T naught into entropy generation. So T naught 300 है, so we can write this 4.04 into 300, से आ जाएगा 1212 जूल्स, ये वैल्यू आ जाएगी। सो दिस इज द इररिवर्सिबिलिटी टेकिंग प्लेस हियर। एंट्रोपी जनरेशन पूछा था, इररिवर्सिबिलिटी वाज आस्क्ड, हीट ट्रांसफर वाज आस्क्ड, वर्क ट्रांसफर वाज आस्क्ड। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो दिस प्रॉब्लम, लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल रीड दिस प्रॉब्लम। So this is question number 4A second part. Actually there is one more problem, third A second part, but that I have already discussed in the video lecture of concept through question. So I will show you that lecture, but first let me discuss this problem, fourth A second part. An ideal gas is compressed reversibly and adiabatically from state A to state B. Reversible adiabatic compression है, it is then heated reversibly at constant volume to state C, fine, after expanding reversibly and adiabatically to state D such that TB equal to TD. So basically it is talking about a cycle question, एक cycle की बात कर रहा है which is composed of reversible processes. So the gas is again reversibly heated at constant pressure to state E such that TE equal to TC. Heat is then rejected reversibly from the gas at constant volume till it returns to state A. Show that. So we have to prove something. So basically there are reversible processes and reversible adiabatic processes. Moreover,
In the question they have given some condition like T equal to TC and TB equal to TD. So क्वेश्चन में मैं TS डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं. सबसे पहले TS डायग्राम ड्रॉ करेंगे so that we are able to visualize the situation. उसके बाद हम देखेंगे what can be done about it. So TS डायग्राम ड्रॉ करते हैं. क्यों TS डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं ये क्लियर है, बिकॉज रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेसेस है इन्वॉल्व अपार्ट फ्रॉम कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर इक्वल दिया गया है. सो टीएस डायग्राम पे आई कैन सी वेदर द पॉइंट्स आर एट सेम टेम्परेचर और नॉट. सो ड्रॉ करते हैं टीएस डायग्राम को. सो सपोज दिस इज द, let me draw it here. Suppose this is the temperature axis and we have this as the entropy axis. So this is T and this is S. अब एक एक करके प्रोसेस को ड्रॉ करेंगे, then we will be able to understand. So ideal gases compress reversibly and adiabatically from state A to state B. Reversible adiabatic यानी isentropic होगा, isentropic है compression है. So when isentropic compression will take place, compress होगी गैस, temperature will increase, temperature increase करेगा. So that we can show here, ये हम यहाँ दिखा सकते हैं. Reversible adiabatic compression. So this let me represent it here. Let me start from here. Reversible adiabatic. Sorry, I'll reduce the thickness a bit. Yeah. So reversible adiabatic compression. ये दिखा सकते हो. Reversible adiabatic compression. A to B reversible adiabatic compression है. So this is A and this is let us say B. ये B है reversible adiabatic compression. अब आप देखो इसके बाद जो प्रोसेस हो रही है, it is then heated reversibly at constant volume to state C. Constant volume पे heating हो रही है. If we see on the TS diagram पे अगर आप कर्व्स देखोगे, so suppose there are दो कर्व हैं, one is like this and one is like this. So the steeper one, जो ज्यादा steep होगा, which is more vertical, जो ज्यादा vertical होगा, that will be constant volume, and the curve which is less vertical, जो कम steep है, that will be constant pressure. ये constant pressure है. थ्योरी में we discuss these things, पढ़ी होगी आपने ये चीजें. So when we are making the diagram, तो ये चीज हम ध्यान रखेंगे. Constant volume heat addition, एनर्जी एडेड इन द फॉर्म ऑफ हीट की फॉर्म में एनर्जी ऐड हो रही है तो एंट्रोपी इंक्रीज करेगी. सो एंट्रोपी इंक्रीज करेगी, विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं. दिस इज लेट अस से C, B टू C. तो ये पॉइंट C है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट ऐड हुई. दिस इज पॉइंट C, B टू C. एंट्रोपी इंक्रीज करने की तरफ दिखाया मैंने. ठीक है. देन नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं. आफ्टर एक्सपेंडिंग रिवर्सिबली एंड एडियाबेटिकली टू स्टेट D सच दैट TB इक्वल टू TD, रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन. सो एक्सपेंशन होगा, एनर्जी गोज आउट इन द फॉर्म ऑफ वर्क की फॉर्म में एनर्जी बाहर जाएगी, टेम्परेचर रिड्यूस करेगा. एंट्रोपी क्यों कांस्टेंट रहेगी? क्योंकि वॉल्यूम बढ़ जाता है एक्सपेंशन में. सो the molecules can be scattered in a larger space. ज़्यादा स्पेस में स्कैटर होते हैं तो उससे रेंडमनेस बढ़ती है, बट टेम्परेचर कम हो रहा है तो स्लो मूव करेंगे. टेम्परेचर रिडक्शन रेंडमनेस को रिड्यूस करेगा, बट इंक्रीज इन वॉल्यूम ट्राइज टू इंक्रीज इन रेंडमनेस, तो वो मैच हो जाएगा इफ इट इज अ रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस. एक्सपेंशन है, टेम्परेचर रिड्यूस होगा सच दैट डी पे जो टेम्परेचर है वो B के बराबर होगा. सो आई विल ड्रॉ इट इन अ मैनर, जैसे एक बार हम ये देख लेते हैं, यहां पे डैश्ड लाइन ड्रॉ करेंगे सो दैट वी कैन सी दिस हियर C to D, ये आएगा C to D. ठीक है. सो ये पॉइंट D है, टेम्परेचर इक्वल टू B हो जाएगा. सो दिस इज पॉइंट D, ये पॉइंट D हो गया. रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन. फाइन. अब देखते हैं फर्दर. द गैस इज अगेन रिवर्सिबली हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर. अब हीटिंग हो रही है बट कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है, टू स्टेट E सच दैट TE इक्वल टू TC.
अब जो फाइनल टेम्परेचर है वो TC के बराबर है। सो सबसे पहले क्या करते हैं, एक डैश लाइन ड्रॉ कर लेते हैं TC से, सो दैट जो E पॉइंट है वी कैन शो दैट इट इज लाइंग एट दिस टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पे लाई कर रहा है कहीं, कांस्टेंट प्रेशर है। सो इफ दिस इज कांस्टेंट वॉल्यूम, सो कांस्टेंट प्रेशर विल बी लेस स्टीपर। कांस्टेंट प्रेशर जो कर्व है वो इससे कम स्टीप होगा। सो सपोज व्हाइट से ड्रॉ करता हूं, या सपोज इफ दिस इज, अगर ये कर्व कांस्टेंट वॉल्यूम है, सो कांस्टेंट प्रेशर इज लाइक दिस। मान लेते हैं कांस्टेंट प्रेशर ऐसे है, लेस स्टीप, कम स्टीप है इससे, एंड दिस इज पॉइंट D, ये पॉइंट D हो गया। गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज कांस्टेंट वॉल्यूम एंड दिस इज कांस्टेंट प्रेशर। रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। फाइन, अब देखते हैं। सो E इक्वल टू TC, TE इक्वल टू TC, सॉरी ये पॉइंट D नहीं होगा, इट विल बी आई थिंक पॉइंट E, ये पॉइंट E हो जाएगा, इसको हटा देते हैं, दिस इज पॉइंट E, या D to E है। अब देखिए TE इक्वल टू TC है, ये हमने बना लिया। हीट इज देन रिजेक्टेड रिवर्सिबली फ्रॉम द गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट रिजेक्शन हो रहा है टिल इट रिटर्न्स टू स्टेट ए। सो कांस्टेंट वॉल्यूम पे जब प्रोसेस होगी, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, सो कांस्टेंट वॉल्यूम ज्यादा स्टीप होगा कर्व, इसके कंपैरिजन में द कर्व विल बी स्टीपर होगा, एंड वी आर रिटर्निंग बैक टू ए पे हम वापस आएंगे। सो सपोज ये इसको लाइन को ऐसे एक्सटेंड करूंगा कि इट विल मीट हियर, ये यहां मीट करे, दिस इज लेट अस से पॉइंट ए। सो दिस इज E टू A। कर्व आप जब ड्रॉ करोगे तो अगर पेंसिल से ड्रॉ कर रहे हो तो यू कैन फिट द कर्व इन सच अ मैनर, बिकॉज अब मैं इसको मिटा के दोबारा ड्रॉ नहीं करूंगा। यू हैव अंडरस्टूड। नाउ वी हैव दिस एज कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम है। फाइन, नाउ बेसिकली ये स्मूथ कर्व होगा, बस ये ध्यान रखना है। नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी हैव कंप्लीटेड द साइकिल। अब प्रूव क्या करना, वी हैव टू प्रूव अ रिलेशनशिप, एक रिलेशनशिप प्रूव करनी है यहाँ पे। ऑल दी प्रोसेसेस अगर आप साइकिल में देखोगे, रिवर्सिबल कांस्टेंट प्रेशर, रिवर्सिबल कांस्टेंट वॉल्यूम, रिवर्सिबल एडियाबैटिक, ऑल दी प्रोसेसेस आर रिवर्सिबल। सिंस ऑल दी प्रोसेसेस आर रिवर्सिबल, क्योंकि सिंस ऑल प्रोसेसेस आर रिवर्सिबल, क्योंकि सारी प्रोसेस रिवर्सिबल है, देयरफॉर साइकिल इज रिवर्सिबल। देयरफॉर साइकिल इज रिवर्सिबल, एक रिवर्सिबल साइकिल की बात हो रही है, ठीक है। और एनीवेज साइकिल है, इट इज अ साइकिल। साइकिल का मतलब क्या होता है, साइकिल का मतलब होता है द वर्किंग फ्लूइड, जो भी कोई गैस होगी वर्किंग फ्लूइड होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम एन इनिशियल कंडीशन रीचिंग एट द सेम फाइनल कंडीशन। तो रिवर्सिबल हो या ना हो, वेदर इट इज रिवर्सिबल और नॉट रिवर्सिबल, क्वेश्चन में तो वैसे दिया गया है। बट इवन इफ द साइकिल इज नॉट रिवर्सिबल, अगर साइकिल रिवर्सिबल नहीं भी है तो नेट एंट्रोपी चेंज फॉर द साइकिल जीरो होता है। व्हाई इट इज जीरो, क्यों जीरो होता है? बिकॉज इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन सेम है, एंट्रोपी एक प्रॉपर्टी है। सो एंट्रोपी चेंज फॉर द साइकिल विल बी इक्वल टू जीरो। साइकिल के लिए जीरो है एंट्रोपी चेंज, ठीक है। तो साइकिल के लिए एंट्रोपी चेंज लिखना है तो डेल्टा एस ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी एंड सो ऑन। सो वी विल राइट डाउन डेल्टा एस ए बी प्लस डेल्टा एस बी सी प्लस डेल्टा एस सी टू डी, ए बी बी सी सी टू डी प्लस डेल्टा एस, it will be d to e plus this is c to d, then d to e, then e to a plus delta s e to a, this is equals to 0। ये 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। So the entropy change for all the processes combine कर लिया हमने, there will be increase in entropy, decrease in entropy and so on, but initial point और final point same है, तो initial entropy and final entropy same होगी, net change in entropy will be 0। A to B reversible adiabatic isentropic, C to D reversible adiabatic isentropic। so A to B and C to D का entropy change 0 हो जाएगा। A to B 0 क्यों? क्योंकि isentropic होगा। then C to D is 0, same
ट्रॉपिक, आइसेंट्रोपिक है, ठीक है। B2C, D2E एंड E2A देखना है। अब एक एक करके हम लिखते हैं। डेल्टा S B2C, B2C के लिए यूनिट मास के लिए लिखते हैं। फॉर यूनिट मास एंट्रोपी चेंज, पूरी साइकिल में यूनिट मास के लिए लिख रहा हूं मैं। सो B2C कांस्टेंट वॉल्यूम है, कांस्टेंट वॉल्यूम। सो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए क्या लिख सकते हैं? M मास यूनिट लिख रहा हूं तो M1 हो जाएगा, CV ln T, B2C है तो TC अपॉन TB प्लस R। यूनिट मास के लिए कंसीडर कर रहे हैं। M मास होगा तो M भी लिख सकते हो, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट साइड पे 0 है, सो M कॉमन आ जाएगा पूरे एक्सप्रेशन से, प्लस R ln VC अपॉन VB, ये हो जाएगा। फाइन। कांस्टेंट वॉल्यूम है, B2C प्रोसेस इज अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, तो वॉल्यूम का टर्म 0 हो जाएगा। ये वाला टर्म log ऑफ 1 आएगा तो ये 0 हो जाएगा, 0 होगा क्योंकि VC इज इक्वल्स टू VB हो गया, ये 0 हो गया। So, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू CV ln TC अपॉन TB। तो एक टर्म हमें मिल गया। नेक्स्ट टर्म निकालते हैं ऐसे। सो दिस टर्म वी हैव फाउंड आउट, दिस इज 0, दिस टर्म वी विल फाइंड आउट। D2E निकालते हैं। सो डेल्टा S D2E इज इक्वल्स टू, अब आप देखो D2E कांस्टेंट प्रेशर है, सो बेटर टू यूज द फॉर्मूला इन विच प्रेशर टर्म अपीयर्स, प्रेशर टर्म जिसमें आता हो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे D2E। सो प्रेशर टर्म जिसमें आएगा इट विल बी CP, यूनिट मास की बात कर रहे हैं तो CP ln TE अपॉन TD माइनस R ln PE अपॉन PB, बट क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा सिंस PE इक्वल्स टू PB। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है तो दिस विल बिकम 0, ये 0 आएगा तो वी विल हैव दिस एज CP ln TE इज इक्वल्स टू, ये दिया गया है TC के बराबर है, TE इक्वल टू TC, TD इक्वल टू TB। तो क्या लिख रहा हूं मैं? TE की जगह TC लिख रहा हूं एंड TD की जगह TB लिख रहा हूं। क्यों लिख रहा हूं? ब्रैकेट में लिख देते हैं, सिंस TE is equals to TC and TB और TD is equals to TB. So replace कर दिया हमने एक्सप्रेशन में। फाइन। सो वी हैव द सेकेंड एक्सप्रेशन ऑल्सो, देन थर्ड लिखते हैं। थर्ड एक्सप्रेशन ये लिख लिया थर्ड एक्सप्रेशन, डेल्टा S E to A, डेल्टा S E to A। सो डेल्टा S E to A is equals to, इसके लिए अगर आप देखो प्रोसेस कौन सी है, E2A is a constant volume process, so let us use the volume formula, वॉल्यूम और टेम्परेचर वाला फॉर्मूला यूज करते हैं यूनिट मास के लिए। सो CV ln TA अपॉन TE प्लस R ln VA अपॉन V, फाइनल अपॉन इनिशियल है, E से A जा रहे हैं, सो फाइनल इज A, इनिशियल इज E। दिस इज 0, ये 0 है क्योंकि VA विल बी इक्वल टू VA VE के बराबर है। सो वी विल गेट दिस CV ln TA अपॉन TE। TE को अगेन वी कैन रिप्लेस, TE इज इक्वल्स टू TC, TE इक्वल्स टू TC, तो ये रिप्लेस कर सकते हैं, TC से रिप्लेस कर देंगे इसको। सो TA अपॉन TC क्यों लिख सकते हैं? सिंस TE is equals to TC. Now we have these terms, ये सारे terms हैं हमारे पास। So अगर इसको हम बोल दें, suppose if we say this is equation A, मान लेते हैं ये equation A है। So therefore equation A implies सारे terms को ऐड कर देंगे and this term is CV ln TC upon TB, CV ln TC upon TB फर्स्ट टर्म था, CV ln TC upon TB, सेकेंड टर्म था CP ln TC upon TB प्लस CP ln TC upon TB। These two
terms are similar, just CV and CP है. And third term is CV ln TA upon TC plus CV ln TA upon TC. This is equals to 0, 0 के बराबर है. Let me divide with CV throughout. अगर mass m लेते तो we would have divided with m also, m से भी divide कर सकते थे, but we are considering unit mass. So we can write this as ln TC upon TB. CP upon CB is gamma, gamma ln TC upon TB, then plus ln TA upon TC is equals to 0. ये आ जाएगा. ठीक है. अब आप देखो गामा कैन गो, जैसे हम ये लिख सकते हैं x ln x n. So n जो है it can be written, this term can be written x to the power n, ln x to the power n. So basically पावर में जब होता है log में तो we can bring it out like this, ऐसे लिख सकते हैं. और एक और बात है, we can use ln a plus ln b is equals to ln a into b भी लिख सकते हैं. These are the logarithmic expressions, formulas जो हम use कर सकते हैं इसमें. So n can be taken in the power of x. Similarly, gamma can be taken here. So we can write ln Tc upon Tb plus ln Tc upon Tb whole to the power gamma plus ln और I can take it to the right side, इसको right side पे ले जाते हैं, is equals to minus ln Ta upon Tc. Fine. ठीक है. अब log a plus log b equal to log a into b हो जाएगा. So log of Tc upon Tb whole to the power gamma into 1. So gamma plus 1 आ जाएगा power, gamma plus 1 is equals to this term minus sign power में जाएगा. So you can take minus 1 in the power, it will reverse. So log of T C upon T आ जाएगा. We will have log of Tc upon T. ये expression आएगा. Log a equal to log b, so that means a equal to b. So ये आ जाएगा Tc upon Tb whole to the power gamma plus 1 equals to Tc upon Ta. ये आ जाएगा. ठीक है. Now from here, यहां से आप क्या कह सकते हो, let us see what we have to prove. Prove क्या करना है ये देख लेते हैं एक बार. So we have to prove, I think Ta equal to something था. Yeah, Ta equal to something we have to prove. Tb to the power gamma plus 1 upon Tc to the power gamma. Right, we have almost reached that expression. इस expression तक हम पहुंच चुके हैं. From here, now Ta. So Ta I will bring on the left side. Ta left side पे ले आऊंगा. Ta here. Tb I can take in the numerator. So Tb to the power है gamma plus 1 upon Tc I can take to the denominator. Tc को denominator पे ले जाऊंगा. पावर गामा प्लस 1 है, बट न्यूमरेटर में ऑलरेडी Tc टू द पावर 1 है. सो 1 पावर कैंसिल हो जाएगा. सो Tc टू द पावर गामा. दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव. यही हमें प्रूव करना था. ठीक है. सो बेसिकली देयर आर लॉट ऑफ अरेंजमेंट. एक्चुअली प्रूव वाले क्वेश्चंस जो इन द एग्जाम दे आर स्लाइटली डिफिकल्ट बिकॉज इवन इफ यू नो थिंग्स बट अरेंजिंग थिंग्स, आई मीन हिट एंड ट्रायल से आप बार बार इसको अरेंज करोगे तो दैट कैन टेक अ लॉट ऑफ टाइम समटाइम्स. सो लक पे भी डिपेंड करता है. नेक्स्ट आई टोल्ड यू द क्वेश्चन 3A सेकेंड पार्ट. सो दैट ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड इन द कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन लेक्चर. ये एक ऐसा क्वेश्चन है, इसको जो रेगुलर क्लासेस है उसमें भी आई हैव डिस्कस्ड इन सम बैचेस. सो आई एम शोइंग यू दैट वीडियो. A heat engine operates between the maximum and minimum temperature limits of 671 डिग्री सेल्सियस. हमें एक हीट इंजन दिया है, टेम्परेचर लिमिट दिया है 671 डिग्री सेल्सियस एंड 60 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली विद एन एफिशिएंसी ऑफ 50% ऑफ द एप्रोप्रिएट कार्नोट एफिशिएंसी. यानी एक इंजन है जो इस टेम्परेचर लिमिट के बीच में, जो यहां दी गई है, इसके बीच में जब ऑपरेट करता है तो कार्नोट के कंपैरिजन में 50% एफिशिएंसी पे ऑपरेट कर रहा है. इट ड्राइव्स अ हीट पंप. अब उससे जो भी वर्क प्रोड्यूस होगा वो एक हीट पंप को ड्राइव करने के लिए यूज किया जाता है, जो रिवर वाटर से हीट एब्जॉर्ब करता है. रिवर वाटर है 4.4 डिग्री सेल्सियस पे टू हीट ए ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स.
तो हीटिंग होगी, कोई ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स की बात की गई, यानी बहुत सारे फ्लैट्स होंगे, घर होंगे जिनको हीट करना है, एंड द टेम्परेचर इज टू बी मेंटेन। अब फ्लैट में जो टेम्परेचर मेंटेन करना है वो 21.1 डिग्री सेल्सियस का करना है। एज्यूमिंग दैट अ टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 11.1 डिग्री सेल्सियस। ये जो क्वेश्चन सेलेक्ट किया है मैंने डिस्कस करने के लिए, ये इसलिए किया है क्योंकि ये वाला जो पार्ट यहाँ लिखा है और एक लास्ट पार्ट है, इसमें कई स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन होता है और मेरे पास बहुत सारे डाउट्स भी आते हैं। तो ये वाला पार्ट इस क्वेश्चन के थ्रू हम डिस्कस करके अपने कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सो देखते हैं, assuming that a temperature difference of 11.1 degree Celsius exists between the working fluid and river water on one hand, यानी जहां से हीट पंप हीट एब्जॉर्ब करेगा वो रिवर से करेगा, तो रिवर का टेम्परेचर है 4.4, तो 4.4 से 11.1 का डिफरेंस होना चाहिए, यानी जो हीट पंप का वर्किंग फ्लूइड जो भी रेफ्रिजरेंट होगा उसके बीच में और रिवर वाटर के बीच में 11.1 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होना चाहिए, तभी तो हीट ट्रांसफर होगी। और दूसरी तरफ जहां ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स पे हीट रिजेक्ट करेगा वहां भी ये डिफरेंस इतना होना चाहिए। एंड द रिक्वायर्ड रूम टेम्परेचर ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ रूम टेम्परेचर और जो रेफ्रिजरेंट होगा हीट पंप का उसके बीच में यही डिफरेंस होना चाहिए। And assuming the heat pump to operate on the reversed Carnot cycle but with a COP of 50% of the ideal COP, तो heat pump का भी 50% है ideal COP के। Find the heat input to the engine per unit heat output from the heat pump, यानी अगर heat pump 1 किलो जूल हीट दे रहा है तो उसके बदले में इंजन को हमें कितनी एनर्जी हीट की फॉर्म में देनी पड़ेगी। इसके बाद ये पूछा है कि वाई इज डायरेक्ट हीटिंग, यानी आप डायरेक्ट हीट करो अगर तो वो थर्मोडायनेमिकली ज्यादा वेस्टफुल है, मतलब एनर्जी वेस्टेज होती है डायरेक्ट हीटिंग से, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ये 11.1 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे क्या है और कैसे इसको क्वेश्चन में यूज करेंगे इस बात को देखते हैं। सो यहां मैंने एक डायग्राम बनाया है, इंजन है, Q1 हीट आ रही है मान लो, Q2 वो रिजेक्ट करता है, हीट एब्जॉर्ब करता है 671 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से, जिसको केल्विन में कन्वर्ट किया 944 केल्विन, रिजेक्ट करता है 60 डिग्री सेल्सियस पे, केल्विन में है 333 केल्विन। वर्क प्रोड्यूस करेगा, ये वर्क हीट पंप के पास जाएगा, हीट पंप एब्जॉर्ब करेगा ये हीट रिवर वाटर से, रिवर वाटर का टेम्परेचर है 4.4 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में मैंने कन्वर्ट कर लिया 277.4 केल्विन। लेकिन जो हीट पंप एब्जॉर्ब करेगा तो हीट पंप के रेफ्रिजरेंट और रिवर वाटर के बीच में 11.1 डिग्री सेल्सियस इसका डिफरेंस होना चाहिए। तो अगर ये डिफरेंस होना चाहिए तो क्योंकि हीट एब्जॉर्ब करनी है, रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर 277.4 से कम होना चाहिए, क्योंकि रिवर से हीट हमें एब्जॉर्ब करनी है। सो इसमें 11.1 अगर कम हो जाए, 11.1 अगर यहां पे कम हो जाए तो जो टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर पे ऑपरेट करेगा ये हीट पंप, यानी हीट पंप के लिए टेम्परेचर हम ये नहीं लेंगे, दिस -11.1 लेंगे। तो 277, ये मैं ऐसे लिख रहा हूं 277.4 -11.1। अच्छा, ये 11.1 डिफरेंस है तो डिग्री सेल्सियस में लिखो या केल्विन में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो वैल्यू आएगी टेम्परेचर की, ये वैल्यू आएगी 266.3, आ जाएगी 266.3, यानी हीट पंप के लिए जो लोअर टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट का हो गया, जब हम फॉर्मूले में लिखते हैं ना सीओपी को टेम्परेचर की टर्म में, तो रेफ्रिजरेंट के टेम्परेचर होने चाहिए, वो कुछ भी नहीं दिया जाता, तो जहां से हीट एब्जॉर्ब हो रही होती है और जो रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर होता है उसको हम सेम मान लेते हैं। नहीं कुछ बोला जाएगा तो मान लेंगे, लेकिन अगर कुछ बोला जाएगा तो फिर रेफ्रिजरेंट का जो टेम्परेचर है हम फॉर्मूला लिखते समय वही टेम्परेचर लिखेंगे। अब हायर अगर आप देखोगे तो ब्लॉक ऑफ फ्लैट के टेम्परेचर को 294.1 पे मेंटेन करना है, डिग्री सेल्सियस में था मैंने कन्वर्ट कर लिया। लेकिन अगर रेफ्रिजरेंट को हीट वहां जाके रिजेक्ट करनी है तो इस टेम्परेचर पे जिस पे ब्लॉक ऑफ फ्लैट को मेंटेन करना है उससे 11.1
ज्यादा होना चाहिए, तभी तो वहां जाके हीट रिजेक्ट कर पाएगा। तो यहां जो टेम्परेचर है ये वाला टेम्परेचर, ये यहां से 11.1 ज्यादा होना चाहिए, यानी कि ये आना चाहिए 294.1 प्लस 11.1, ये आना चाहिए, ये टेम्परेचर होना चाहिए। और ये अगर हम ऐड कर दें तो जो इसकी वैल्यू आएगी ये आएगी 305.2। तो ये जो वैल्यू है दिस विल कम आउट टू बी 305.2 केल्विन, ये वैल्यू आएगी। इंजन हीट ले रहा है, यहां रिजेक्ट कर रहा है, वर्क प्रोड्यूस कर रहा है, यहां से हीट एब्जॉर्ब हो रही है, ब्लॉक ऑफ फ्लैट को हीट रिजेक्ट हो रही है। हमें ये पूछा गया है अगर Q4 1 किलो जूल चाहिए, यानी जो हीट रिजेक्शन है हीट पंप का अगर वो यूनिट हो तो उसके बदले में Q1 कितना हमें देना पड़ेगा। अब देखते हैं, क्वेश्चन में ये भी दिया है कि इंजन की जो एफिशिएंसी है वो कारनॉट, अगर साइकिल पे इंजन वर्क करता उसके 50% है। सेम बात हीट पंप के लिए दी गई है, उसका सीओपी भी 50% है अगर कारनॉट से कंपेयर किया जाए तो। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सो इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें इंजन की एफिशिएंसी की, सो जो एफिशिएंसी ऑफ द इंजन है वो 50% दी गई है कारनॉट के। सो 0.5 इंटू कारनॉट, कारनॉट की एफिशिएंसी होती है 1 माइनस TL लोअर टेम्परेचर, दैट इज 333 दिया हुआ है यहाँ पे, TL अपॉन TH। सो TH कितना है 944, ये मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया 1 माइनस TL अपॉन TH, एफिशिएंसी का फॉर्मूला यूज किया यहाँ पे। अब एफिशिएंसी तो ऐसे भी लिखी जा सकती है वर्क अपॉन हीट, एफिशिएंसी को तो वर्क अपॉन हीट लिख सकते हैं, तो W अपॉन Q1 ये हो जाएगा 0.5 इंटू 1 माइनस 333 अपॉन 944, ये आएगा, ये आ जाएगा। यहां से हम W और Q1 के बीच में एक रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। तो ये जो रिलेशन आएगा ये आएगा W इज इक्वल्स टू 0.3236 Q1, ये आ जाएगी वैल्यू। अब हम बात कर सकते हैं फर्दर हीट पंप की। सो हीट पंप की बात करेंगे, हीट पंप के लिए हम कह सकते हैं कि भाई जो सीओपी हमें बोला गया है हीट पंप का वो भी 50% है किसके, आइडियल सीओपी के। आइडियल सीओपी कैसे लिखेंगे हम, आइडियल सीओपी लिखने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे कौन सा, TH अपॉन TH माइनस TL। मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, TH अपॉन TH माइनस TL, ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम। अच्छा, सीओपी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सीओपी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डिजायर्ड इफेक्ट, ये है हमारा जो हीट रिजेक्ट कर रहा है वो, अपॉन एनर्जी इनपुट, एनर्जी इनपुट यहां है वर्क। सो डिजायर्ड इफेक्ट 1 यूनिट एनर्जी अपॉन एनर्जी इनपुट है W इज इक्वल्स टू 0.5। लोअर टेम्परेचर और हाइयर टेम्परेचर, यहां जो टेम्परेचर्स रखने ना ये हम यहां मार्क कर चुके हैं। लोअर टेम्परेचर वर्किंग फ्लूइड का, यानी हीट पंप में जो रेफ्रिजरेंट है उसका होना चाहिए। सो TH हाइयर टेम्परेचर भी वही होना चाहिए, TH है 305.2, ये हमने सॉल्व किया था, यहां कैलकुलेट किया था हमने, अपॉन 305.2 माइनस क्या आ जाएगा 266.3, ये आएगा। यहां से हम वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मैं दोबारा लिख देता हूं, सीओपी ऑफ हीट पंप का यह जो डेटा था वो था डिजायर्ड इफेक्ट, ये 1 था अपॉन W। यहां से वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं, वो रखेंगे तो Q1 आ जाएगा। तो वर्क की जगह में ये डायरेक्टली रख रहा हूं, इसकी जगह डायरेक्टली रख देते हैं 0.3236 Q1, ये वैल्यू रख देंगे इसकी जगह, ये वैल्यू रखेंगे इसकी जगह पे, तो हमें यहां से देयरफॉर वी विल गेट Q1, यहां से हमें Q1 की वैल्यू मिल जाएगी। Q1 की वैल्यू जो आ रही है ये 0.788 किलोजूल आ रही है, और ये किस बेसिस पे हमने निकाला, इतने किलोजूल हीट आपको इंजन को देनी पड़ेगी पर किलोजूल ऑफ हीट
रिजेक्शन बाय हीट पंप, पर किलो जूल ऑफ हीट रिजेक्शन बाय हीट पंप। सो ये हमने इसका एक पार्ट सॉल्व कर लिया। इस क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया था, और ये पूछा गया था कि heat input to the engine, heat input to the engine per unit heat output from the heat pump, ये हमने सॉल्व कर लिया। अब हमसे ये पूछा जा रहा है why is direct heating thermodynamically more wasteful, यानी आप डायरेक्ट हीट जब करते हो तो उससे एनर्जी का वेस्टेज ज्यादा क्यों होता है, ये पूछा जा रहा है। तो यहां डायरेक्ट हीटिंग का मतलब क्या है ये देखते हैं। अब देखो, जैसे इस क्वेश्चन में इस बात को अगर समझे हम, सो जो Q1 निकल के आया, ये Q1 निकल के आया 0.788 आया, मान लेते हैं 0.79, इसको 788 आया था। अब हम अगर इंजन को सप्लाई कर रहे हैं 0.79, तो यही हीट भाई कहीं से तो आई होगी ना, ये हीट जो इंजन को सप्लाई की गई, कोई फ्यूल जलाया होगा आपने, उसमें से आई होगी ये हीट। यही हीट अगर आप डायरेक्टली इसको गर्म करने के लिए देते, जो फ्लैट्स को जिनको गर्म करना है आपको, तो आप इतनी एनर्जी देते, इतनी पहुंचती वहां पे 0.79। लेकिन अगर हमने इसका यूज करके इंजन चलाया तो इंजन इसमें से कुछ वर्क डेवलप करेगा। जब आप हीट पंप को वो वर्क दोगे तो हीट पंप ये जो वर्क की फॉर्म में एनर्जी है, एनर्जी कंजर्व होगी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो ये जो वर्क की फॉर्म में एनर्जी है इसको तो हीट की फॉर्म में रिजेक्ट करेगा ही करेगा, बाहर से भी कुछ हीट एब्जॉर्ब कर लाएगा। यानी कि अगर आप देखो ये जो 1 है ये W प्लस Q3 है, ये बाहर से भी कुछ एब्जॉर्ब कर लाता है। इसीलिए क्या होता है कि डायरेक्ट हीट सप्लाई करना, उसके कंपैरिजन में आप अगर उससे वर्क डेवलप करो, क्योंकि डायरेक्ट हीट का मतलब क्या है, बहुत हाई टेम्परेचर पे अगर एनर्जी है तो उसमें अवेलेबल एनर्जी काफी है, यानी उससे वर्क काफी डेवलप किया जा सकता है। हम अवेलेबल एनर्जी की बात करेंगे अभी आगे लेक्चर्स में, बट अगर समझने की कोशिश करें तो हाई टेम्परेचर पे एनर्जी है तो उसमें काफी अवेलेबल एनर्जी होती है, उससे काफी वर्क डेवलप किया जा सकता है। अगर आप वर्क डेवलप कर पाए तो आप उससे हीट पंप चलाओगे तो आपके थोड़े से वर्क में वो बहुत सारी हीट बाहर से एब्जॉर्ब करके ले आता है। इसलिए क्या होता है कि आप 0.79 देते हो हीट इस टेम्परेचर पे, तो इसके बदले में वो 1 किलो जूल वहां रिजेक्ट करता है, जबकि 50% है जो मैक्सिमम हो सकता है उसका। कार्नोट का 50% लिया हमने, प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। सो ये आंसर होगा सेकंड जो हमने पार्ट देखा क्वेश्चन में कि भाई थर्मोडायनेमिकली वेस्टफुल क्यों है। उसका रीजन ये है कि अगर आप डायरेक्ट हीट करते तो 0.79 किलो जूल हीट दे पाते, 0.788 आया था, मैंने लमसम लिख दिया। अगर आप ऐसे ही इस पूरे अरेंजमेंट को यूज करोगे तो 0.79 देके आपको 1 किलो जूल हीट मिल रही है।